I am so. Uh, Shivang, thanks for talking. did I give you any sentence in any chapter? Bacha? With process na? I have given you one sentence in be present. मैं तैयार हूँ. Yes sir, it is done. मैं तैयार हूँ. Have you written it? Yes sir, I have written it. So write down the second sentence. वे मेरी भाभी हैं. Have you written? So who has to make this sentence? Should I repeat? Who has to make this sentence? Am I audible or not? Yes, sir, you are Yes sir, you audible. have written. I am Okay. waiting for Deepika Didi and Deepika Didi waiting for me. But I Okay. think if firstly she Okay, get understand. this opportunity. You are absolutely right. I agree with you. So with process, Shivang, I think you should go ahead with this. They need to learn it properly. They don't know the process, I think, or they have I have not to gone make through. this sentence. Huh? Come again? Uh, I, I have to make this sentence. Acha, you know the process. So please go ahead. That is very nice. Okay. Um, mm, sir, after Shivang, I'll do. I think. Okay, Shivang, who has to make this sentence? So I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I have to take the subject and the subject is she. Sorry, Shivang, you are making the same mistake last time you were making. And finally, I think Nidhi made the sentence with normal and easy process. You were making the same mistake in the previous class. And now Nidhi I has know. come. I cannot. Okay, after Nidhi Didi. Nidhi, write down this sentence in B. वे मेरी भाभी है. Who has to make this sentence? So I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I would like to take the subject. Firstly, I will take the subject, and the subject is C. Uh, Later on, I will take the main verb, and the main verb is is. Uh, Thereafter, I will take uh, thereafter Sorry.
Uh, I will put later on. Your conjunction is wrong. Later on. Thereafter. सही। Uh, अच्छा, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ and इधर से। lastly, हाँ, lastly, uh, lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is my bhabhi. There. दीपिका, is भाभी, what is भाभी, noun or adjective? Can you tell me? It's noun, sir. Yes, absolutely right. Can you ask the same question to Shivan? Shivang, what is bhabi in this sentence? Didi, Bhabhi is noun in this sentence. Roshni Didi, what is Bhabhi in this sentence? Bhabhi is noun in this sentence. Nidhi Didi, what is Bhabhi in this sentence? Bhabhi is noun in this sentence. Uh, who is rest? Nisha, what is Bhabhi in this sentence? Bhabhi is noun. This sentence. ओके, चलिए एक क्रिएटिविटी राउंड खेलते हैं। पहले सेम आंसर, फिर चेंज करेंगे। ओके निधि, हु इज शी? Sir, she is my granny. अच्छा, तुमने नहीं सुना। She दीपिका, is my bhabhi, sir. दीपिका, हु इज शी? She is my bhabhi, sir. वे कौन है? वे मेरी भाभी हैं। शिवांग, who is she? She is my Bhabhi. वे कौन है? वो मेरी भाभी हैं। Didi, who is she? बेटा निशा, निशा, ये या रोशनी दीदी का नाम लो तुम। Okay, Roshni Didi, who is she? She is my bhabhi. दीदी वो कौन है? वो मेरी भाभी है। निशा दीदी, who is she? She is my भाभी। निशा जी, वो कौन है? वो मेरी भाभी है। दीदी, who is she? She is my bhabhi. वो कौन है? वो मेरी भाभी हैं। सर there. Okay. Now let's do creativity. Now I'm starting with Nidhi. Nidhi, who is she? Sir, she is my mother-in-law. निधि, वो कौन है? सर वो मेरी सासू माँ है। दीपिका, who is she? She is my friend, Nidhi. दीपिका वो कौन है? वो मेरी फ्रेंड है निधि। शिवांग, who is she? She is my GF. वे कौन है? ओ वो मेरी GF है। वैसे इतना सम्मान देते तो नहीं है, क्योंकि अपन वो देना। अच्छा, बड़ी होगी तुमसे 10-20 साल, इसलिए हाँ ठीक है। नानी है ना। हाँ,
रोशनी दीदी, who is she? She is my sister. दीदी वो कौन है? वो मेरी सिस्टर है. निशा जी, who is she? She is my daughter. वो कौन है? वह मेरी बेटी है. नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें और भारतीय रिश्ते हम लेकर आएंगे। एंड आई एम स्टार्टिंग विद सेम निधि बिकॉज आई स्टार्टेड द लास्ट राउंड विद निधि। निधि, इज शी योर जेठानी? आप यस या नो दोनों में आंसर दे सकते। No, sir, she is not my Jethani. She is my cousin. नोट लगाने की जरूरत नहीं है। Okay, sir. इज शी योर जेठानी? No, sir. She is my cousin, sister. क्या वो तुम्हारी जेठानी है? नहीं सर, वो मेरी कजन सिस्टर है। दीपिका, is she your neighbor? Yes, Nidhi, she is my neighbor. दीपिका, क्या वो आपकी पड़ोसन है? हाँ निधि, वो मेरी पड़ोसन है। शिवांग, is she your नानी? No दीदी, she is my sister. अच्छा, इतनी बुढ़ी है कि वो नानी के बराबर लग रही है। कौन सी वाली दीदी है तुम्हारी जो नानी के? I will tell her, I will tell जया, है दीदी ना? है सर, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी हमसे, बड़ी अम्मी की दीदी, लड़की मतलब बहुत बड़ी है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी चीज को हम आपसे बार बार बोलते कि शिवांग एक्टिव हो गया है, निधि भी एक्टिव होगी, लेकिन कभी कभी जब इस तरह से इसको एक्सटेम्पो कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेम्पो एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। यस, एक्सटेम्परी। इट इन हिंदी तात्कालिक भाषण, एक्सटेम्परी दैट इज तात्कालिक भाषण। तो इसमें व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, वो प्रैक्टिकल नहीं रह पाता है। तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखना है, इसके बिना आप वो मनवांछित सफलता नहीं पा सकेंगे जो मन में है। यहाँ पे दीपिका, तुम्हें एक चीज बताते क्योंकि तुम टीचिंग के फील्ड में हो, इसको रीजनिंग कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर बच्चों के फेल होने का कारण, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे भी नहीं कॉम्पिटिटिव में सिलेक्ट हो पाते, उसका एक ही कारण ये है कि उनकी रीजनिंग वीक रहती है। इसको तार्किक बुद्धि भी कहते हैं हिंदी में, तार्किक योग्यता का। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो रीजनिंग यानी तार्किक शक्ति, तार्किक बुद्धि, तार्किक योग्यता का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कभी सुना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि आपकी पत्नी और आपकी माँ दोनों डूब रही हैं आपके सामने नदी में, आप किसे बचाएंगे? इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन। अब पहली दृष्टि में लगता है ये क्या बेवकूफी वाले सवाल करते हैं, लेकिन वहां पे वो निर्णय लेने की क्षमता को परखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके निर्णय लेने की क्षमता, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, इट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग। सर, अभी कुछ साल पहले डीएलएड एमपी बोर्ड ने ऑर्गेनाइज कराया था, वो एग्जाम भी दिया था मैंने, क्योंकि बहुत कम पैसों में हो रहा था, तो किया। उसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आए थे, सारे क्वेश्चन लगभग लास्ट के थोड़े से लिखने वाले थे, अदरवाइज ऐसे ही सारे क्वेश्चंस थे। तो हम
हमारा यही उद्देश्य रहता है दोस्तों कि अगर हमारे किसी ग्रुप में कोई स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो इस बहाने उसकी रीजनिंग की तैयारी हो जाती। बैंकिंग में इसको बहुत महत्व दिया जाता है, बैंकिंग में रीजनिंग बहुत आती है। चलो एक बार फिर से पूछ लो, इतनी देर में उसको मनन करने का मौका मिल गया होगा शिवांग को। तुम सेम क्वेश्चन करना। शिवांग, is she your नानी? She is my दादी। अब क्या ये वो आंसर आपकी यहाँ से नहीं शुरू होना चाहिए। कोई बताएगा एक कौन सा लेटर छोड़ा है? Yes, sir, सर sorry. पूछ थी, ऐसा था। हाँ, एक नेगेटिव शब्द शुरू में लगना। Sir, no, she is not ओ, my नानी। She is my दादी। No, she is my दादी। करेक्ट। शिवांग, क्या वे आपकी नानी है? नहीं, वो मेरी दादी हैं। रोशनी दीदी, is she your देवरानी? No, she is my जेठानी। क्या वो आपकी देवरानी है? नहीं, वो मेरी जेठानी है। वेरी नाइस। निशा जी, she is your चाची। चाची सास को Sorry। क्या बोलेंगे? हाँ शिवांग, तुम सही दिखा रहे हो हाथ। Is she your एक चुटकुला सुनाया था बच्चों तुम लोगों को, दो बहरे दोस्तों का। फिर से सुनो। दो पक्के दोस्त रहते हैं, दोनों बहरे रहते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। दोनों एक दिन बाजार में मिलते हैं, तो एक दूसरे से बोलता है, का भाई बाजार जा रहे? तो दूसरा बोलता, नहीं यार हम तो बाजार जा रहे। तो पहला बोलता, अच्छा हम तो समझे तुम बाजार जा रहे। निशा जी, she your mother-in-law? Yes. Sir, sorry for mother-in-law because I used mother-in-law in first round. It will do, sir. Okay. अब अपन अगला तीसरा राउंड शुरू कर रहे हैं निधि से ही। निधि, जरा रिश्तों को और देखते हैं कि आप कितने रिश्ते जानते हैं। हम रिश्तों में थोड़ा सा कमजोर हैं, लेकिन महिलाएं काफी मजबूत होती हैं। तो चाची सास को क्या बोलेंगे? निधि, इज शी योर बड़ी बुआ? No, sir. She is my cousin बुआ। क्या वो तुम्हारी बड़ी बुआ है? नहीं सर, वो मेरी कजन बुआ है। दीपिका, is she your हमने एक बड़ी मजेदार चीज देखी, जो जब बच्चों का बैच होता है ना, तो जैसे ही हमने बड़ी बुआ बोला, तो अगला जिसका नंबर होता है वो फट से बोलता है, इसी और छोटी बुआ। मतलब वो बड़े एक्टिव रहते हैं इस मामले में, अपोजिट उठा के धर देते हैं। लेकिन अब तुम नहीं रख पाओगे क्योंकि हमारे मुंह से निकल गया वो कड़ी। No sir, one option is rest. Deepika, is she your Majli Mosi? No, she is my छोटी मौसी। दीपिका, क्या वो आपकी मजली मौसी हैं? नहीं निधि, वे मेरी छोटी मौसी हैं। शिवांग, इज शी योर फ्रेंड?
said you na, she is my girlfriend. शिवांग, क्या वो आपकी फ्रेंड है? मैंने कहा ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है। दूसरी दीदी, इज सी योर संजली मम्मी? Yes, she is my Sanjali mummy. दीदी निशा क्या जी? वो आपकी संजली हाँ, क्या वो वो आपकी मेरी संजली संजली मम्मी मम्मी है? है। हाँ, वो मेरी संजली मम्मी है। निशा जी, she is your maid? प्लीज कम अगेन तो रोशनी। वो दो बहरे मिल गए बाजार में। Is she your maid? No. No. She is my बबलू वहाँ Good morning, निशा जी। तुम नाम चेंज कर लो ना, कुछ नहीं तो हम ही से रूपल पूछो। हाँ रूपल रूपल जी। रूपल जी, is she your maid? No, Roshni, she is not my maid. क्या वो No, आपकी sorry. काम वाली भाई है? Sorry. She is not. Sorry. Uh, she is not my maid. She is my cousin sister. क्या वो आपकी काम वाली भाई है? नहीं रोशनी, वो मेरी काम वाली बाई नहीं है, वो मेरी कजन बहन है। अब देखिए दोस्तों, फिर एक बार इस मैचिंग को देखिए। क्या आपकी कजिन बाई के जैसी दिखती है? सोच के देखिए, आपने अपनी कजिन की अगर वो सुन लेगी तो वो गुस्सा करेगी, रूठ जाएगी कि मेरी तुलना बाई से कर रही है। दोस्तों इस राउंड को हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं। निधि, इज शी योर सबसे छोटी मौसी? No, sir. She is my companion. क्या वो तुम्हारी सबसे छोटी मौसी है? नहीं सर, वो मेरी दोस्त है। दोस्त। दीपिका, इज सी योर सबसे बड़ी भाभी? नो निधि, शी इज माय फ्रेंड। दीपिका, क्या वो आपकी सबसे बड़ी भाभी हैं? नहीं निधि, वो मेरी फ्रेंड है। शिवांग, इज शी योर मदर? शी इज माय बड़ी मदर, बड़ी मम्मी। क्या वे आपकी मम्मी है? नहीं, वो मेरी बड़ी मम्मी है। बेटा थोड़ा पहले ऑन कर लिया, अनम्यूट कर लिया करो, फिर पूरा सेंटेंस बोला करो। हमें 2-3 बार से नो सुनाई नहीं दे रहा। किसी और को सुनाई दे रहा है? ये अनम्यूट बोलना पहले शुरू कर देते हैं, अनम्यूट बाद में करते। तो हम सॉरी बोल देते, कम अगेन। नो, शी इज माय बड़ी मम्मी। क्या वे आपकी मम्मी है? नहीं, वो मेरी बड़ी मम्मी है। दीदी, इज सी इज शी योर चाची सास? Yes, she is my चाची सास। दीदी क्या वो आपकी चाची सास है? हाँ, वो मेरी चाची सास है। रूपल जी, इज सी योर ननंद की सास?
She is Natasha. रूपल जी वॉइस इज चॉपिंग. Yes, Roshni. She is my ननद की सास. रूपल जी क्या वो आपकी ननद की सास है? हाँ रोशनी, वो मेरी ननद की सास है. बहुत बढ़िया रोशनी. शिव सर शिवांग से पूछ लूं मैं. यस ऑफ कोर्स. शिवांग, इज शी योर एल्डर सिस्टर? बट इज शी वो इज शी आपकी बड़ी बहन है? Again, please. शिवांग, इज शी योर बड़ी बहन? No, she is my छोटी बहन. शिवांग, क्या वो आपकी बड़ी बहन है? वो मेरी छोटी दीदी है. अच्छा दीदी. Is she your मौसी? अब इसके बाद कहाँ बचे रिश्ते भैया? Sir, I have to give one more answer. अब हम थोड़ा दूसरे दिशा में ले जाते हैं. ये अवेयरनेस भी देखते हैं. निधि, इज शी योर स्टेनो? No, sir. She is my भांजी. क्या वो आपकी स्टेनो है? नहीं सर, वो मेरी भांजी है. डू यू नो बच्चों डेजिग्नेशन? द स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन. आई रिपीट, डेजिग्नेशन. दैट इज पदनाम. Sir, come again your question firstly. इस बार मैं रोशनी से पूछता हूँ, क्योंकि तुम सब भेड़ चाल चल रही हो, नो लगा के उसमें ऑप्शन बढ़ा लेते हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो. तो इस बार मैं रोशनी से पूछता हूँ, वो यस में उत्तर देती है. रोशनी, इज शी योर स्टेनो? यस, शी इज माय स्टेनो. क्या वो आपकी स्टेनो है? सर स्टेनो का हिंदी क्या होगा? दीपिका, इज शी योर स्टेनो? Yes, sir. She is my steno. क्या वो आपकी स्टेनो है? जी सर, वो मेरी स्टेनो है. हाउ इज शी इन वर्क? She is doing typing. शिवांग, इज शी योर स्टेनो? Yes sir, she is my steno. क्या वो आपकी स्टेनो है? सर वो मेरी स्टेनो है. हाउ इज शी इन वर्क? सर कहना है. I don't know sir. Sir, निशा, can- इज शी योर स्टेनो? रूपल जी, इज शी योर स्टेनो? No, sir, she is my steno. निधि, इज शी योर स्टेनो? Yes, sir, she is my steno. हाउ इज शी इन वर्क? Sir, she is manage my दीपिका, इज शी योर स्टेनो? business work. Yes, sir. She is my steno. क्या वो आपकी स्टेनो है? जी सर, वो मेरी स्टेनो है. हाउ इज शी इन वर्क?
शी इज so इन हर वर्क। वो काम में कैसी है? वो काम में ठीक ठाक है। ओके। दो क्वेश्चन पूछना जरूरी नहीं है क्योंकि अभी लाइन लौट गई। एक एक क्वेश्चन पूछो, कोई डेजिग्नेशन रखो, कोई डेजिग्नेशन। शिवांग, इज शी योर ट्यूटर? Again, Didi. इज शी योर ट्यूटर? Yes, she is my tutor. क्या वे आपकी ट्यूटर हैं? हाँ, वो मेरी tutor है। Didi, is she your speaker? To whom are you Didi, asking, Shivang? to you. हमने बोला ना वो कई बार अनम्यूट बाद में करता है या फिर उसके ये डिवाइसेस मैच कंपेटेबल नहीं है, तो मैक्सिमम उसका पहला लेटर ना तो लिखा हुआ आता है ना सुनाई देता है। Didi, is she your speaker? Yes, Shivang. She is my speaker. दीदी क्या वो आपकी स्पीकर है? सॉरी शिवांग। हाँ, अब Come बच्चों again. को It is ज्यादा डेजिग्नेशन पता ही नहीं होते तो क्या करें, चलने दो। स्पीकर भी होता है, एक पद होता है, राज्यसभा लोकसभा में होता है, चलने दो चलने दो। yes, Shivang. She is my speaker. Rosni, is she your secretary? अभी नहीं, Yes, she is बता my रही थी। secretary. नहीं बोलेंगे। रोशनी, क्या वो आपकी सेक्रेटरी है? हाँ, वो मेरी सेक्रेटरी है। रूपल जी, is she your teacher? Yes, Roshni, she is my teacher. क्या वो आपकी टीचर है? हाँ रोशनी, वो मेरी टीचर हैं। दीपिका, इज शी योर नेबर? सॉरी रूपल जी। चलो हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। दीपिका दीपिका से शुरू किया था ना कि निधि से? हाँ दीपिका। दीपिका, Excuse me. I Yes. think she said lever. ओके। Lever or never? नेबर। हाँ मैम, नेबर। हाँ, never तो गलत हो गया। Lever, I thought lever. दीपिका, इज शी योर अकाउंटेंट? यस सर, शी इज माय अकाउंटेंट। क्या वो आपकी अकाउंटेंट है? जी सर, वो मेरी अकाउंटेंट है। एक क्वेश्चन और कर ले दीपिका, तुम दे देती हो आंसर। इज शी सीनियर अकाउंटेंट? यस सर, शी इज सीनियर अकाउंटेंट। क्या वो वरिष्ठ अकाउंटेंट है? जी सर, वह वरिष्ठ अकाउंटेंट है। थोड़ा अजीब लग रहा हूँ, पूरा हिंदी कर देते हैं। क्या वह वरिष्ठ लेखापाल है? जी सर, वह वरिष्ठ लेखापाल हैं। कोई बड़ा पूछ रहा था अभी बीच में, बहुत हिंदी और इंग्लिश अगर अभी हम बताने लग जाएं तो कान से धुआं निकलने लगे। जो बोला जाता है वो बोलो, जो सिंपल लैंग्वेज है। शिवांग, इज शी योर स्कूल प्रिंसिपल? Yes, she is my school's principal. शिवांग, क्या वो आपकी स्कूल प्रिंसिपल है? हाँ, वो मेरी स्कूल प्रिंसिपल है। दीदी,
Is she your colleague? Yeah, yes, Shivang. She is my colleague. दीदी क्या वो आपकी कलीग है? हाँ शिवांग, वो मेरी कलीग है। रोशनी, सहकर्मी, ऑफिस में साथ में काम करने वाला पुरुष या महिला कलीग। स्पेलिंग इज ऑन द स्क्रीन। रोशनी, is she your pomologist? Yes, she is my pomologist. रोशनी, क्या वो आपकी पोमोलॉजिस्ट है? हाँ, वो मेरी पोमोलॉजिस्ट है। रूपल जी, इज सी योर ब्लू हाउस स्कूल ब्लू हाउस कैप्टन? Yes, Roshni. She Come is my again, रोशनी. Sorry for. Come again, please. Is she your school blue house captain? सॉरी रोशनी। Sorry. Is she your friend? सॉरी रोशनी। Deepika, is it clearly visible? Yes, sir. It is clearly visible. आप लोग अब इन सारी सुविधाओं का अपने से लाभ उठा सकते हैं। आपको पता चल गया कि स्क्रीन जूम इन हो सकती है, जूम आउट हो सकती है। यू कैन आल्सो जूम इन स्क्रीन, जूम आउट योर स्क्रीन। Good morning, रोशनी। बेटा, ये हम बहुत दिनों से बोल रहे थे अवेयरनेस। दीपिका, उस दिन तुम लोग आई थी तो तुमने चीजें देखी ना? इस क्लास में बाहर वो पैसेज में कुछ चिंदी चिंदी चिपकी है, उस पर नजर गई तुम्हारी? जी। हाँ, पहला आज लिखा था, बोलोगे नहीं तो बनेगा कैसे, इस टाइप का कुछ लिखा था। हाँ, तो हम इन माध्यमों से और ये लेकर आ गया था वो, उसने हमें तुरंत दिया शिवांग। अब छोटी छोटी चीजें हमें आसपास के अपने माहौल से ऐसे ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, उन पर नजर रखना चाहिए। और अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं, मान लीजिए आप ग्रामीण बहू हैं और घर में रहती हैं, बाहर जाकर नहीं जा पाते, तो टीवी जो है वो अवेयरनेस का सबसे अच्छा साधन है। और दोस्तों, मैं एक बात और फिर से आज निवेदन करता हूँ। अगर आप फिजिक्स की क्लास में होते तो मैं आपको खूब लिखवाता और अवेयरनेस पे कभी चर्चा नहीं करता। केमिस्ट्री की क्लास में होते तो किताब में जो जो है वही सब लिखवाता और याद करने को बोलता, अवेयरनेस पे कभी चर्चा नहीं करता। कॉमर्स, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, मैथ्स, ये सब केवल एक विषय हैं। इनमें आपका तथाकथित होशियार होना जरूरी है, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट। लेकिन इस क्लास में सो कॉल्ड इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है। इस क्लास में आप एक जागरूक बंदे की जरूरत है, जो अपने आसपास क्या चल रहा है उसके प्रति सचेत, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, ये भी हम अपेक्षा करते हैं।
जैसे दीपिका तुमने शिवांग से नानी पूछा था, नानी के उम्र की व्यक्ति वहां पे कुछ रख सकते हैं। रूपल जी से नौकरानी पूछा तो उन्होंने कजन बता दिया, तो ये मैच अच्छा थोड़ी है। अब यहाँ बीच तुम लोगों ने देखा, रोशनी बीच बीच में किसी का इंग्लिश जाने की रट लगाई थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका में जाके इंग्लिश नहीं बोलना है आपको अपने घर में और अपने मोहल्ले में और अपने देश में ही इंग्लिश बोलना है। और हमारे समाज में भाभी शब्द पूरे रिश्ते को डिफाइन कर देता है 2 लेटर। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ क्या ऐसी सुविधा होती है जानते हो? एक तो अंग्रेजों के रिश्ते भी इतने स्नेही और निकट नहीं होते हैं, तो उनके यहाँ तो अगर आपको बहुत शौक है रिश्तों का अंग्रेजी जानने का, तो हम गूगल में जाएंगे, इमेज उठाएंगे और सीधे आपको पोस्ट कर देंगे, उसमें सारे रिश्ते लिखे मिल जाएंगे। लेकिन वो काम में नहीं आएंगे। जैसे आप किसी से बोलो कि आई वॉन्ट टू टॉक टू योर देवरानी, तो वो सीधे देवरानी के पास जाके उनको बुला लाएगा कि ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। देवरानी शब्द अपने आप में पर्याप्त है। अब अगर हम बोले आई वॉन्ट टू टॉक टू योर सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ के कितने हिंदी होते हैं पता है बेटा? बताओ। देवरानी, जेठानी, भाभी, भाभी। और क्या होंगे, ननंद। अब 4 मीनिंग निकल के आए। अब उसने अपनी खिड़की बंद कर ली रोशनी में। बेचारा कंफ्यूज रहेगा किसको जाके फोन दे, हाँ, तो बेचारा को कॉन्फ्रेंस में लेगा। एक शब्द में पूरा हो जाता है हमारे यहाँ का रिश्ता और एक्यूरेट होता है। ओके, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई, देखने गई है क्या कर रही है। चलो हम यहाँ अगला सेंटेंस बनाते हैं। लिखिएगा, वे मेरे ताऊजी हैं। Who has to make this sentence? I have to make this sentence, sir. आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन फिर मैं करता हूँ। दोस्तों, आप किसी का होना देख रहे हैं इस चैप्टर में, ये बी चैप्टर है, किसी का होना दिखाया जा रहा है। वेरी नाइस, दीपिका, गो अहेड। Firstly, this sentence is related to be present. I will make this sentence in affirmative. Later on, I'll take subject, which is he. Then thereafter, I'll use main verb, which is. After that, we will use. Lastly, we will use adjective and noun, which is my Tauji. Great. अब इस निवेदन को फिर से सुनिए दोस्तों। एक वाक्य बना लेना इस क्लास में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है। वाक्य तो सही नहीं बना इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो दीपिका के मुंह से इतनी सारी इंग्लिश तो निकली है ना। अब हम किसी और से पूछ लेते हैं
Now, who has to make this sentence? I has to make this sentence. तुम has Sorry, sorry, Shivang. Have. I have No, to. I hear sir. I also hear has and इधर लिख के भी आया. Google has also written has. That's why I also confused. Google भी has ले रहा. I have to make this sentence. This sentence is related to be present and it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is he. Thereafter, I will take the main verb and the main verb is. Lastly, I will take the adjective noun and the adjective noun is my Tauji. Shivang, what is my Tauji? Sir, my Tauji is noun. बच्चों ये केवल हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं बीच बीच में, वो तो अब तुम्हें पता चल गया है. इसके दो उद्देश्य हैं. एक तो तुम्हारी मुंह से इंग्लिश निकलेगी, दूसरा तुम्हारी जुबान पे ग्रामर बैठेगी, और तीसरा अब तुम सीखने जा रहे हो बी चैप्टर के दौरान नाउन और एडजेक्टिव का बोलना आपको दोनों है. बाद में हम एक मिटा देंगे, उसमें से एक फाइनल करेंगे, लेकिन आपको दोनों बोलना है, और बाद में मैं उसको फाइनल कर दूंगा कि वो एडजेक्टिव है या नाउन है. तो ऐसा हम बारंबार करेंगे. तो दीपिका, वो जो इतने साल हमने पढ़ाई की, इंग्लिश पढ़ी, अगर हम पहली क्लास से देखें और 12वीं क्लास कॉलेज सब कुछ, और एडजेक्टिव एडवर्ब इनको लेकर हमेशा अभी तक कंफ्यूजन रहा है ना? यस सर, यस. और लास्ट वाले 4 में और सबसे ज्यादा. तो तुम जैसे यहाँ पे अभी देख रही हो, शुरुआत में क्या होता है, तुम लोगों की भाषा में हम उत्तर दे रहे हैं महिलाओं के, कि एक चावल को ऐसे दबा के देख लो तो पता चल जाता है कि बाकी चावल पक गए हैं कि नहीं. तो अब तुम अंदाज लगा लो, जब तुम इस क्लास के पूरे कोर्स को कंप्लीट करोगी तब तक तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिना किसी रट्टा मार प्रक्रिया के. ना रटना है ना घोटना है. जब तुम रोज रोज उसी चीज को देखोगे, बोलोगे और रखोगे, तो अपने आप तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिना रटे, बिना लिखे, बिना घुटना टेक हुए, बिना मुर्गा बने क्लियर हो जाएगा. और ये चीज शिवांग ने अपनी दोनों दीदियों में देखी है. शिवांग को कम समय मिल पाया इस क्लास में, लेकिन इनकी दोनों दीदियों ने पूरा पैसे वाइज तक एंड तक कोर्स को किया है. और आज अब उनको कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. आज उनको बुला के यहाँ खड़ा करते हैं तो आधे घंटे आपसे इंग्लिश में बात करने की स्थिति में दोनों के दोनों, जया और नेहा. तो ये अपने आप होता है. ये वैसा है, इसको इस उदाहरण से समझ लो कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना. अगर आप रेगुलर हो इस क्लास में तो ये सब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. वीडियो एक बार देख लेना अगर ऐसा लगे दीपिका, तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके. मैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बना के बताऊंगी. हाँ, वेरी नाइस. और अपन बहुत ज्यादा चैलेंज के रूप में चीजों को नहीं देखते हैं. इजी गोइंग वे में होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी. और तुम कभी अलग से निधि से बात करना, या आज हम जैसे हम अब विदा लेते हैं, नमस्कार करें और हम डिस्कनेक्ट होंगे, तो तुम थोड़ी देर रुकना, निधि से हिंदी में बताना. निधि बताएगी कि निधि जब शुरू में आई थी और आज जिस स्थिति में पहुंची, वो एक दिन में नहीं हुआ है. वो बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है. सब बार 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 पूरा राउंड चलते जाते और एकदम जुबान पे आ जाती है वो चीज. और शिवांग का क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उसने केवल गर्मियों की छुट्टियों में बैच ज्वाइन किया था
और निधि ने काफी। निधि तुमने पूरा किया था बेटा पैसे वाइज तक कि नहीं? यस सर, बस 1 वीक रह गया था। फिर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, पापा जी। फिर कोरोना। फिर हाँ, फिर 2 साल तो वैसे गांव में काफी रहना मेहनत कर दिया। हाँ। इतना सा बचा है बस। चलो। बट सर मेरा ये कहना है कि मतलब सबको थोड़ा थोड़ा, भले एक एक लाइन बनाए, बट सबको बनाना ट्राई करना चाहिए। लोग बंद करके बैठे रहते हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि बेटा अभी हम विदा लेने का समय हो गया है। अब इस पर कल अपन क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। तुम जरा इन लोगों से हमारी अनुपस्थिति में थोड़े हिंदी में बन जाओ, है ना, 5 मिनट तक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। रोशनी, रोशनी कल से कोशिश करोगी, है ना? भले ही एक लाइन बना पाओ, चाहे कुछ भी बना पाओ, सुन के बना, बस सुनना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे फर्स्ट में मैं बनाऊंगी या शिवांग बनाएगा, दीपिका बनाएगी, तो कम से कम एक लाइन बोलने की कोशिश करो, जितना हो पाएगा। फिर आगे चल के और बढ़ेगी। अपन गाते हैं उसी को ना, कैसे, कम अगेन? जैसे जो सेंटेंस सर बनाते हैं उसी को ना। हाँ दीदी, सर उसको ना सर थोड़ा पूछते ना, ना। मतलब थोड़ा ना स्लो बोला करो ना, बीच में ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसमें, बीच के उसमें थोड़ा स्लो बोल ले। हाँ। ठीक है, तो फिर मतलब रुक के जगह पे आप हाँ। कम अगेन बोला करो ना, तो फिर से रिपीट तो होगा ही होगा ना। हाँ। एंड यू इम्प्रूव्ड। जब ये रोशनी आई थी और अभी से रोशनी में काफी इम्प्रूवमेंट है, मुझे भी लगता है कि मेरे में काफी इम्प्रूवमेंट है। आप तो पहले से ही काफी, मेरी अपेक्षा बहुत ठीक थी। हम अपने मतलब सेम लेवल पे ही आए थे एक्चुअली रोशनी। उस समय ना, कुछ समय पहले से मैंने थोड़ा 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 शुरू किया था। और यहाँ पे भी कोशिश की कि मैं बोलती हूँ, क्योंकि कोई मेरे को पहचानता नहीं है। तो ठीक है, क्या होगा, चलेगा, सब म्यूट करके ही हंसेंगे। ये एक थॉट रहता था, ये एक सबके विचार साथ रहता होता था। है, ऐसा नहीं है। मतलब दिमाग पे बिल्कुल नहीं लेना, बस एक लाइन बस बोलना शुरू करो, झिझक अपने आप ही खत्म होगी बस। मेन जितना झिझक है, मेन नहीं, वो निधि, ऑटोमेटिकली निधि लग जाएगी। झिझक है। पता नहीं, बोला ही नहीं जाता है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मैं कहीं रॉन्ग ना हो जाऊं, इसलिए चुप हो जाती बार बार। ये तो चीज जब अपन रॉन्ग है, रूपल जी, जब अपन गलतियां हो रही तभी तो अपन सीख रहे हैं ना। अगर गलतियां नहीं होती तो अपन काय को आते सीखने के लिए? आप खुद सोचो, लेकिन ये अब है सीख हाँ, सकते हैं अपन। डेली बात करोगे ना, तो मेरे में भी इतने कॉन्फिडेंस नहीं था, पर जब मैं निधि दीदी से बात करती हूँ ना, तो मतलब थोड़ा बहुत तो मेरे में आ जाता निधि, है। ये बात तो है कि निधि बहुत सपोर्ट करती है। जब भी मैं उसको फोन करती हूँ या फिर करते बोलती हूँ कि मेरे साथ करके फेस टू फेस कर लो, तो वो कभी भी रेडी रहती है। ये बात तो बोलना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान करी हूँ निधि को, अभी 1 मंथ से नहीं करी हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मतलब मैं समझ सकती हूँ रूपल जी, क्योंकि यही सब चीज मेरे में था कि मतलब कोई मुझे नम्रता दीदी सिखाए, में भी मुझे था सिखाने ये वाला चीज, कोई नहीं था। मैंने फेस टू फेस किए नम्रता दीदी से, उनमें भी ये चीज है। बाकी हाँ। बहुत अच्छे से मतलब वो करती है। निशा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। प्रकट हो प्लीज, प्रकट विथ अस, अपेयर प्लीज निशा जी। अब ऐसे ही रहना है क्लास में, क्योंकि ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आता। आप जो खिड़की बंद करके बैठी रहते हो, बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आप हो कि नहीं हो। पूरा कंसंट्रेट देना है, पूरा। फिर वही हाँ गाना बजेगा, ये खिड़की जो बंद रहती बस है। दिमाग में तो जॉब मारने के लिए बोल लो, सबकी चीटिंग हाँ, बस कल से बिल्कुल सेंटेंस बनाना शुरू कर दो, बस चाहे एक लाइन बनाओ। हम लोग का सुन के बस सुनना जरूरी है रूपल जी। आप फर्स्ट कल का से सुन निधि लीजिए। दीदी हाँ, निधि जी, कल से अपन पहले सेंटेंस नहीं बनाएंगे, अपन इसीलिए लोग मैं बाद में बनाएंगे पहले। हाँ, एक बन गया था ना शिवम, इसीलिए फिर मैंने एक नहीं, बन हम लोग हाँ हाँ। कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटेंस क्या बनाना है, कौन सा एफर्मेटिव है करते हैं, कौन सा मतलब एडजेक्टिव है, कुछ नहीं मालूम रहता, ब्लैंक रहते हैं। आप और कुछ भी बोलिए रूपल जी, अफर्मेटिव बोलिए, WH बोलिए, इन्वर्टेड बोलिए, हम लोग मतलब वो सर खुद ही सुधरवा देंगे। फिर वो आगे जाएगा क्वेश्चन, तो वो हाँ, सुधारेगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ अपन से गलती हुई है।
ऐसा होगा। वैसे फिर यही है कि डेली हमसे बोला ही नहीं जाता, वहाँ बस बोले तो ऐसा होता है कि गलत ना हो जाए, गलत ना आप हो जाए, और गलत होते हैं। अरे तो सुधर जाइए, कितने दिन गलत होगा, वो है कितने कि दिन बस गलत थोड़ा होगा। झिझक ही हमारी हमको परेशान कर रखी है। ऐसे अपन में मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे अगर बोलेंगे नहीं तो। इसमें सिर्फ सुनना, ध्यान से सुनना और बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप पूरी चीजें फर्स्ट से लेकर जो सेंटेंस बना रहा, अपना मत बनाना शुरू कीजिए, अपनी जब बारी आएगी तो कुछ भी बना दो। पहले सुनना जरूरी है, जो सबसे फर्स्ट में बना रहा है उसका सुनिए कि उसने क्या सब्जेक्ट क्या रखा है, क्या ऑब्जेक्ट रखा है, क्या वर्ब ली है। फिर मन से दूसरे का सुनिए, फिर आप तक आएगा, जब तक आपको कुछ ना कुछ आ ही जाएगा दिमाग में। आई थिंक ऐसा निधि रहता है। मैम ने अभी लिखा था और एक्चुअल में सही भी है कि ठीक है, अगर क्लास अपना कहीं पे अपन काफी कंफ्यूज हैं, कुछ भी है, कितना अच्छा है कि अपने पास वीडियोस होते हैं, वो अपन आराम से बैठ के देख लें एक बार और। ठीक है, तो दूसरे दिन के लिए हम थोड़ा सा प्रिपेयर रहते हैं। सेकंड थिंग, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आपका ब्रेक हुआ है, ठीक है, जो भी रीजन होगा, आगे का आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, तो वो चीज आएगी ही, इम्प्रूव होगी ही, है ना। देखो सबके साथ परेशानियां सबके साथ होती हैं, ऐसा नहीं कि सबको मैनेज करना पड़ता है। बट वो अपने ऊपर ही डिपेंड है, अपन ही उसका मतलब सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि अपन को एक घंटा कैसे निकालना, कैसे भी करके पूरा कॉन्सेंट्रेट, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, ना हम आपका निकाल सकते, ना कोई और आपका निकाल सकता है। ऐसा रहता ये है। बात तो सही है कि 1 घंटा निकालना है, और क्या मालूम कोइंसिडेंस ऐसा होता है उसी वक्त गेस्ट आ जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि उनके सामने क्या बोलूं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगा के रखी हूँ, तो नहीं नहीं, ठीक है कुछ नहीं हम होता, ऑफलाइन जाते कोई हैं। नहीं है रूपल जी, कभी कभार चलता है ऐसा, कभी कभार ही होता है, डेली कोई नहीं आता है, हाँ ऐसा नहीं, रहता डेली है। नहीं होता, डेली नहीं होता। हाँ। बट ये खिड़कियां जब बंद होती तो बहुत अजीब लगता, कुछ ऐसा लगता है पूछे तो किससे पूछे, कोई दिख ही नहीं रहा, कोई क्या जवाब देगा, कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे अभी निशा ने फिर से बंद करके रखा है, बस इससे मिलता क्या है वही हमको समझ में नहीं आता है। कि अपने अपन लोग तो हैं सर, है मतलब वो 1 घंटे के लिए बस टाइम निकाल लो बस, क्योंकि वो अपने लिए जरूरी है, ये नहीं कि हम जबरदस्ती बोल रहे हैं। ये जो मैन बेस चल रहा है, नेहा किसी टाइम एब्सेंट है अभी। कैसा? नेहा क्यों एब्सेंट है? नेहा क्यों नहीं क्लास ज्वाइन कर रही है? वो कोई आया है आज, गेस्ट आए वही, इस वजह से आज उसका हो गया। हाँ। कल भी नहीं थी ना? कल कल वो दवाई के लिए पावनी आई थी ना, कि उसको वैक्सीनेशन होना था, इसलिए वो उसका